वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो कि लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स को पब्लिश करते हैं, इंक्लूडिंग मेनी सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर वेरियस इग्नू कोर्सेस. Now, let's study the assignment for the subject code MCO6 Marketing Management. Starting from question number 1, A part. Describe the profile of a company. एक कंपनी की प्रोफाइल को डिस्क्राइब कीजिए जिसने अडॉप्ट किए हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को. Let's discuss the solution. Marico holds a leadership position in the Indian FMCG space. Marico के प्रोडक्ट और सर्विसेज डील करते हैं हेयर केयर, स्किन केयर एंड हेल्दी फूड सर्विसेज में, which reach out to more than 20 countries in the Middle East, Asian subcontinent, Australia and USA. Marico एक ब्रांडेड प्लेयर है in beauty and wellness solution. इनके वैल्यूज डील करते हैं कंज्यूमर सेंट्रिक, ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस में, अपॉर्चुनिटी सीकिंग, बायस फॉर एक्शन, एक्सीलेंस, बाउंड्री लेसनेसनेस, इनोवेशन और ग्लोबल आउटलुक के लिए. अ फ्लैट स्ट्रक्चर. मारिको का ऐसा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि 5 लेवल्स बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड शॉप फ्लोर ऑपरेटर के बीच डील करता है. मारिको यहाँ पर everyone is a member and not an employee. मारिको का बिजनेस स्ट्रैटेजिक यूनिट्स इंक्लूड करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट और बिजनेसेस में, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप, काया, काया स्किन क्लिनिक्स, काया लाइफ. Let's discuss the part B of the question. Classify the different types of intermediaries and provide examples of each type in the context of consumer goods market. Types of middlemen. मिडलमैन के बहुत सारे टाइप्स हैं. ब्रॉडली इनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, एज डिपिक्टेड इन द फ्लो चार्ट, विच इज प्राइमरी पार्टिसिपेंट एंड एंसिलरी पार्टिसिपेंट्स. Primary के under it has been divided as merchant middlemen, mercantile agents which deals with wholesalers and retailers. Mercantile agents deal करते हैं brokers, commission agents, factors और del cedric agents, auctioneers. And ancillary participants is all about the financial institution, public warehouse, transport company and advertising agency. फैक्टर्स डिस्कस करें तो ये वो मिडलमैन हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं आफ्टर द परमिशन ऑफ द ओनर, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, ऑक्शनर, सीएनएफ एजेंट्स. Let's discuss question number 2. Explain the concept of market segmentation and why it is important for businesses. Identify and describe 3 different market segmentation strategies and provide an example of a company that uses each strategy effectively. Discuss करते हैं इसका solution. Companies जानती हैं that they cannot sell their goods, वो अपनी goods और services entire market में sell नहीं कर सकते. मार्केट एक सेगमेंटेड क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स जो कि केपेबल है मेजरमेंट और क्वांटिफिकेशन के लिए. Sufficient stability, reachable and accessible in terms of media and cost, differentiable, actionable. ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि डील करते हैं कि कैसे कंज्यूमर सेगमेंट्स को स्टेबल होना चाहिए in terms of psychographic and demographic variables. Moving on to question number 3. Write short notes. नीचे दिए गए टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करना है. पार्ट ए इज प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन मेजरली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एक गवर्नमेंट के लिए ये कंसिडर करना कि क्या रेगुलेशंस है और अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में. कंपनीज इस तरीके के प्राइजेस को सेट करते हैं विच आर द बेसिस ऑफ 3 सेट ऑफ फैक्टर्स, जो कि है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. इस मेथड में प्राइस को प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से और प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से सेट किया जाता है.
Next is buyer-based pricing, cost-plus pricing, competition-based pricing. Break-even point is given in terms of volume as total fixed cost divided by the per unit contribution to the fixed cost. This formula can be represented in terms of total fixed cost, which is divided by the selling price unit denoted by the symbol P, and from this हम subtract करेंगे variable cost per unit, which is V. This formula is represented in this manner. Next is buyer pricing. This is also called demand-oriented pricing, differential pricing, perceived value pricing. Moving on to part B, relationship marketing. अगर हम रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करें तो मार्केटिंग मैनेजर्स एम करते हैं एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को क्रिएट करने में अपने कस्टमर्स के साथ उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करके और इस तरीके के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके जो कि एक पर्सनल कनेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करें। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंटली ट्राई करती है म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए जिससे कंपनी को लॉयल कस्टमर्स अर्न होते हैं। Let's discuss the next part, which is Freud's psychoanalytical theory of personality. यदि हम इस थ्योरी के बारे में डिस्कस करें तो ये कंसिडर करती है एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी। There are three subsystems of the individual's personality which are ID, superego and ego. ID रेफर करती है primitive और impulsive drives को जैसे कि thirst, hunger and shelter. Superego basically deals and it refers to the person's internal expression of society's moral and ethical code of conduct. Next is ego, जो कि third subsystem है, which rests between the impulsive powers of the ID and repressive powers of superego. Let's discuss the next part, which is public strategies. Publicity is an indirect mode of communication जहां पर कोई थर्ड पार्टी स्प्रेड करती है न्यूज अबाउट द कंपनी और एक प्रोडक्ट के बारे में। ये एक अनपेड मैसेज है एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मेजर टूल्स पब्लिसिटी के डील करते हैं विद द न्यूज रिलीज, फीचर्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को फीचर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिसमें मीडिया पार्टनर्स अलाउ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को विजिट करने के लिए और उनके बारे में लिखने के लिए, letter to the editor and audio visual materials. Moving on to question number 4. Differentiate between the following. नीचे दिए गए टॉपिक्स के बारे में डिफरेंस बताइए। पार्ट ए इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये टर्म्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। डिस्कस करते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट are two different marketing philosophies that businesses adopt करते हैं, each focusing on distinct aspect of product or a services. कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इनका फोकस होता है मेजरली आइडिया दैट द कस्टमर फेवर प्रोडक्ट्स आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज अजम्पशन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अज्यूम करता है कस्टमर्स प्रायोरिटाइज अवेलेबिलिटी पर और लो प्राइसेस अवेलेबल करने पर इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। एंड मेन अप्रोच इज यूज्ड इन द मार्केट विद हाई डिमांड एंड लिमिटेड सप्लाई जहां पर प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल कराया जाता है इज मोर क्रिटिकल दैन प्रोडक्ट फीचर्स। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो कंपनीज दैट प्रोड्यूस जेनेरिक और मास मार्केट गुड्स जैसे कि बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स और फास्ट फूड चेन्स इस कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इनका मेन फोकस होता है द मेन आइडिया इज दैट कस्टमर्स फेवर प्रोडक्ट्स जिसमें क्वालिटी बेस्ट प्रोवाइड करी जा सके, फीचर्स और परफॉर्मेंस के टर्म में एक्सेलेंस प्रोवाइड करी जा सके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सुपीरियर प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना जो कि कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग से डिफरेंट हो। assumption, it assumes that customers value high quality and innovative products और वो उसके लिए विलिंग है एक प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए।
इसका एग्जाम्पल डिस्कस करें तो कंपनीज इन द टेक्नोलॉजी और लग्जरी गुड्स इंडस्ट्रीज जैसे कि एप्पल, बीएमडब्ल्यू इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट बी, मार्केट skimming एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग strategies. दो मेन अप्रोचेस हैं फॉर प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच आर मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग। इस अप्रोच के अंदर हाई प्राइसेस को सेट किया जाता है प्रोडक्ट के लिए जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, ताकि क्रीमी सेगमेंट को स्किम किया जा सके और मैक्सिमम रेवेन्यू को अर्न किया जा सके। फर्दर इससे प्राइसेस रिड्यूस किए जा सकते हैं एज द कंपटीशन इन द मार्केट डेवलप्स। अगर हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करें विच इज मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यहाँ पर इस अप्रोच के अंडर प्रोडक्ट को एक लो प्राइस पर इंट्रोड्यूस किया जाता है मास नंबर में, जिससे मैक्सिमम बायर्स को अट्रैक्शन होता है एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। मूविंग ऑन टू पार्ट सी, मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग रिसर्च रेफर करती है इस प्रोसेस को जिसमें कलेक्ट की जाती है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है डेटा कलेक्शन के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव और रिलायबल सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया जाता है विदाउट एनी पर्सनल बायसेस एंड प्रेजुडिसेस। मूविंग ऑन टू पार्ट डी, ब्रांड एक्सटेंशन विद ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड एक्सटेंशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे कंपनी यूज करती है एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम को एक नए प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करने में एक डिफरेंट कैटेगरी के लिए। जैसे कि एग्जांपल डिस्कस करें, कस्टमर्स जो परचेज करते हैं आईफोन्स और बाकी के एप्पल प्रोडक्ट्स डिस्पाइट वेरियस अदर स्मार्टफोन ब्रांड्स अवेलेबल, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ब्रांड लॉयल्टी की स्ट्रांगनेस के लिए। Moving on to question number 5, comment briefly on the following statement. Part A, the environment becomes important due to the fact that it is changing and there is uncertainty. Discuss करते हैं इसका solution. Environment constantly evolve हुआ है technological advancement की वजह से, जिसने change किया है consumer के preferences को, regularity changes को और socio-cultural trends को। एनवायरमेंट की अनसर्टेनिटी अराइज होती है क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और डिफिकल्ट है कंट्रोल होने के लिए। इसमें इंक्लूड होते हैं वेरियस एग्जांपल्स लाइक कोविड-19 पेंडेमिक। एक चेंज और अनसर्टेन एनवायरमेंट का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? इससे स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी क्विकली चेंज होती है, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। मूविंग ऑन टू पार्ट बी, कंज्यूमर्स डिसीजन टू परचेज अ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस होता है बाय अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स। हम सीधा फैक्टर्स डिस्कस करते हैं विच इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे लर्निंग बिलीफ, मोटिवेशन, पर्सन का क्या एटीट्यूड और परसेप्शन है, पर्सनल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स के माध्यम से। सारे फैक्टर्स को फ्लोचार्ट के मेथड से रिप्रेजेंट किया गया है। पार्ट सी, रूरल मार्केट्स इन इंडिया ऑफर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस टू द मार्केटर्स। ब्रॉडली रूरल मार्केटिंग इंक्लूड करता है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स और वेरियस टाइप्स की सर्विसेज को। तीन मेन फैक्टर्स जो डायरेक्ट करते हैं रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी डेवलपिंग कंट्री की, let us discuss one by one. The first one is primary increasing food production and major inputs of the industry. Income levels को increase करना of middle and lower strata of the population को, और साथ ही में एक नेशनल मार्केटिंग सिस्टम को प्लान करना जिससे नेशनल मार्केट के साइज को बढ़ाया जा सके। Discussing with part D, there are so many interlinkages between services and products in several instances. ये majorly depend करता है intangibility, heterogeneous nature, साथ ही में simultaneous production और consumption को develop करने में। इस असाइनमेंट और ऐसे इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignowala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं 50 प्लस एडिशनल 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट
www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you wanna see next. Thank you for watching.